Welcome to video lecture series on strength of material. This is continuation of numericals on composite bar. Now composite bar means a bar which is made up of more than one material. For example, steel and copper, steel and brass, or in any two material or more than one material, right? And another property of composite bar is that the extension, the elongation or the contraction of the bar due to external loading is always equal. It means, for example, now in this case a steel tube and copper bar is given. So extension or contraction in this case will be same for steel tube as well as copper bar. So let us see what is given in this numerical. Now in this numerical, a copper rod of 30 mm diameter is given. So this is a copper rod of 30 mm diameter which is enclosed in a steel tube of internal diameter is 30 mm and thickness is of 10 mm, right? So this is a copper bar and which is enclosed in a steel tube just like this pen. Okay. Now in this case, this is a steel tube and this refill is as a copper bar which is enclosed in a steel tube. Okay, so this type of section is this. The total length is given 400 mm and it is subjected to a tensile load of 200 kN. तो हम सबसे पहले given data ले लेते हैं. So let me write down given data here. Given data. So steel tube, right? So steel tube कॉपर बार का हम सबसे पहले लेते हैं. सो कॉपर बार के लिए हम लिखेंगे DC डायमीटर ऑफ कॉपर रॉड कितना दिया है 30 mm. उसके बाद हम देखेंगे स्टील ट्यूब के लिए तो इंटरनल डायमीटर दिया है ना DS इंटरनल डायमीटर कितना दिया है 30 mm. सो वो भी 30 mm है स्टील ट्यूब का. अब एक्सटर्नल डायमीटर गिवन नहीं है यहाँ पे लेकिन थिकनेस गिवन है. तो ये जो थिकनेस है ये थिकनेस हमें गिवन है. दिस थिकनेस इज गिवन एज 10 mm एंड दिस थिकनेस इज ऑल्सो गिवन एज 10 mm, राइट? सो इस पे से हम एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं. सो कैपिटल DS इज इक्वल्स टू इंटरनल डायमीटर इज 30 mm, राइट? सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला. कभी भी आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल D फ्रॉम द इंटरनल डायमीटर एंड थिकनेस. सो स्मॉल ds प्लस 2 टाइम्स थिकनेस है ना, एक थिकनेस ऊपर के साइड की और एक थिकनेस नीचे के साइड की. सो स्मॉल ds इज 30 mm प्लस 2 इंटू 10. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ds विल बी इक्वल्स टू 50 mm, राइट? सो अभी हमें कैपिटल ds मिल गया, यानी ये डिस्टेंस मिल गया. ये डिस्टेंस कितना है 50 mm है. ओके, और क्या गिवन है? P गिवन है विच इज 200 किलो न्यूटन मीन्स 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन. और L गिवन है विच इज 400 mm. एनीथिंग एल्स इज गिवन? यस. ES, actually this is ES and EC is given. So value of ES is given as 200 GPa. 200 GPa means 200 into 10⁻³ Newton per mm square, right? Similarly, EC is given as 100 GPa. So 100 GPa which is equals to 100 into 10⁻³ Newton per mm square or MPa. Anything else is given? No, almost all data has been covered. Now we will see the data which is required to be calculated, right? So let me write down here to find. So to find, we have to calculate stresses in each material. Stresses in each material means sigma S stresses in steel and sigma C stresses in copper bar. Again, load shared by each material, that is load shared by steel tube PS and load shared by copper rod, that is PC. एंड एलोंगेशन ऑफ कंपोजिट बार, यानी टोटल का एलोंगेशन कितना है, यानी डेल एल हमें कैलकुलेट करना है. तो टोटल हमें 5 चीजें कैलकुलेट करनी है, सिग्मा एस, सिग्मा सी, पी एस, पी सी एंड डेल एल.
ठीक है। अब कंपोजिट बॉडी में दो चीजें रहती है, वो आप एक बार मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। कंपोजिट बॉडी में टोटल चेंज इन लेंथ of a composite body is equals to change in length of one material, for example here it is del S and del C। तीनों का सेम रहेगा, है ना, दोनों का सेम रहेगा, स्टील ट्यूब और कॉपर बार का भी सेम रहेगा और पूरे बॉडी का भी सेम ही रहेगा। और दूसरा रहता है टोटल लोड इज शेयर्ड बाय PS प्लस PC। तो ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और इसको ही लेके हम हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अभी हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सो सॉल्यूशन स्टेप वन में हम सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एरिया AS, एरिया ऑफ स्टील ट्यूब। नाउ एरिया ऑफ स्टील ट्यूब कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज हॉलो, राइट, इट इज ट्यूब मीन्स हॉलो। सो π/4 कैपिटल DS स्क्वायर प्लस स्मॉल ds स्क्वायर। नाउ π/4 what is capital DS? Capital DS is 50 square plus 30 square, right? So from this we will get AS is equals to 400 pi mm square. Okay, so this is AS. Similarly we will calculate AC, that is copper rod, area of copper rod. So π/4 into what is DC? Where is DC? It is DC 30 square. So we will get AC is equals to 225 pi mm square. We are calculating area in terms of pi. Okay, आप पाई की वैल्यू पुट करके भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो हमारा स्टेप 1 तो हो गया जिसमें हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी हम हमारे दो कंडीशंस यूज करेंगे। सबसे पहले कंडीशन यूज करते हैं, तो लेट मी राइट डाउन हियर स्टेप 2, कंडीशन 1। ठीक है, कंडीशन 1 क्या कहता है? डेल LS इज इक्वल्स टू डेल LC, राइट। नाउ PSLS अपॉन AS ES, राइट, PL अपॉन AE इज इक्वल्स टू PCLC अपॉन AC EC, फाइन। बट LS एंड LC आर सेम, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली P/A इज इक्वल्स टू सिग्मा, तो क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ? सिग्मा S ES इज इक्वल्स टू सिग्मा C अपॉन EC। अगर ये ES को हम ये साइड में लेके जाते हैं, सो सिग्मा S इज इक्वल्स टू ES अपॉन EC इंटू सिग्मा C। अब ES और EC की वैल्यू पुट करते हैं। ES की वैल्यू कितनी है? 200 इंटू 10⁻³ EC की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 10⁻³। तो आपको फाइनली मिल जाएगा सिग्मा S इज इक्वल्स टू ट्वाइस सिग्मा C, राइट। तो ये रिलेशन हमारे को मिल गया एक इम्पोर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो हमारे कंडीशन 1 हो गई और कंडीशन 1 पे से हमें एक रिलेशन मिल गया, राइट। ये रिलेशन मिल गया सिग्मा S इज इक्वल्स टू ट्वाइस सिग्मा C। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, कंडीशन 2। अब कंडीशन 2 क्या कहता है कि टोटल लोड इज इक्वल्स टू लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कॉपर। टोटल लोड कितना गिवन है? टोटल लोड गिवन है 200 किलो न्यूटन। सो 200 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू, क्या हम ये P हमें पता है सिग्मा इज इक्वल्स टू P/A, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A? यस। सो सिग्मा S इंटू AS प्लस सिग्मा C इंटू AC। अब सिग्मा S इन टर्म्स ऑफ सिग्मा C हमारे पास है, वो हम मुझे पुट करने दीजिए यहाँ पे। सो 200 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू सिग्मा S इज ट्वाइस सिग्मा C AS। AS की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ स्टील 400 पाई इंटू
400 पाई प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी की वैल्यू कितनी है 225 पाई। अब ये इक्वेशन में अननोन क्या है, सिर्फ सिग्मा सी, तो आपको यहां से सिग्मा सी मिल जाएगा। सो सिग्मा सी इज इक्वल्स टू 62.10 Newton per mm square. Now since load is away from each other, it is pull in nature, it will be tensile. अब सिग्मा सी पे से आप सिग्मा एस कैलकुलेट कर सकते हो, यस। सो सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 124.21 Newton per mm square. This will be also tensile, right? सो अभी हमने सिग्मा सी और सिग्मा एस कैलकुलेट कर लिया, तो हमें सिग्मा एस और सिग्मा सी कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें आगे क्या कैलकुलेट करना है, लोड कैरिड बाय स्टील एंड लोड कैरिड बाय कॉपर। सो फोर्थ स्टेप, लोड कैरिड बाय स्टील मीन्स पी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एस इंटू ए एस, हमें पता है, यहाँ पे देखा था हमने, राइट। सो सिग्मा एस कितना है 124.21 इंटू व्हाट अबाउट ए एस इज 400 पाई। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट पी एस इज इक्वल्स टू 156.097 इंटू 10⁻³ न्यूटन, जिसको आप लिख सकते हो पी एस इज इक्वल्स टू 156.097 किलो न्यूटन। Okay, similarly we will calculate PC. PC will be equals to sigma C into AC. sigma C की वैल्यू अननोन है, AC की वैल्यू नोन है, आप PC कैलकुलेट कर सकते हो। सो PC जो निकलेगा that PC will be equals to 43.902, राइट। सो हमने PS और PC कैलकुलेट कर लिया अभी। अब ये जो PS और PC है, इसका एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो चेक क्या रहेगा, चेक रहेगा P इज इक्वल्स टू PS प्लस PC। अब PS कितना है 156.097 प्लस PC कितना है 43.902। तो इसको दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट P इज इक्वल्स टू 200 kilonewton, right, which is matching with our given P, this one, and therefore okay. Now the last one is to find out del L. So del L, we know that change in length of steel tube and copper bar is same, and therefore we can calculate the total del L considering any of one, either steel tube or copper bar, right. So let us calculate del L is equals to PL upon AE. तो कोई भी एक लेंगे अभी हम, जैसे PS ले लेते हैं, राइट। सो PS LS अपॉन AS ES। अब PS कितना है, या फिर PS AS इज इक्वल्स टू सिग्मा एस भी होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा एस LS अपॉन ES। अब सिग्मा एस कितना है, सिग्मा एस 124.21, LS 400 सेम ही रहेगा, राइट, अपॉन ES is 200 into 10⁻³। So from this we will get del L is equals to 0.248 mm, right. So हमने del L भी कैलकुलेट कर लिया अभी। So this is how we can calculate stresses, load carried by the material and change in length in the material using these two fundamentals for a composite bar, that total change in length of a material 1 will be equals to material 2, and load carried, total load carried will be shared by material 1 as well as material 2. Not necessary that the sharing will be exactly equal, it might vary depending upon the cross sectional area and modulus of elasticity. So hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.